My colleague, Honorable Election Commissioner Shri Anup Chand Pandey ji on my left, ECI officials and friends from the media gathered here today and also virtually connected to us. We meet again today for a press conference on that which most of you have been awaiting. इससे पहले कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करें, हम निर्वाचन आयोग की तरफ से मोरबी की दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों एवं उनके शोकाकुल परिजनों के प्रति शोक एवं संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं. Our heartfelt condolences to the grieved families, and we pray that the departed souls rest in peace. Friends, गुजरात राज्य में विधानसभा का कार्यालय 18 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है, जिसमें अभी 100 दिन से ऊपर बाकी हैं. अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है. ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं. आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए. राज्य में 182 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं. Of the 182 assembly constituencies, there are 142 general, 17 SC and 23 ST constituencies. Subsequent to the completion of special summary revision exercise, the final electoral roll has been published for the state of Gujarat on 10th October 2022, and copies of the published electoral roll has been given to all the political parties. They were part of the process by which they were finalized at each stage, and final prints, final rolls have been given to them. During the SSR exercise, the Commission has laid special emphasis on registration of new voters, women voters, transgenders, and persons with disabilities. As you see the data on the slide, for the forthcoming Legislative Assembly elections, our teams would be ready to serve more than 4.9 crore electors, of whom about 27,000 are service electors, 4 lakh persons with disability, more than 9.8 lakh voters above the age of 80 years, and out of which 10,000 voters are centenarians. And there are 4.6 lakh first-time voters between the age group of 18 and 19. Friends, there are, after the subsequent to the provision of 4 qualifying dates, all the young voters who attained the age of 18 years between the 1st of January 2022 to 1st October 2022 got the chance to get themselves enrolled. I am very happy to inform that with this amendment, 3,24,422 additional new voters in the state shall be able to cast their vote in the election for the first time. आप अवगत हैं कि निर्वाचन आयोग की पहल पर जो गत वर्ष कानून में बदलाव किया गया था, उसके बाद से 4 क्वालिफाइंग डेट संभव हैं. तो इमेजिन अगर ये संभव नहीं होता तो जो ये 3,24,000 नए वोटर्स हैं इस बार मतदान नहीं दे पाते और इनको इंतजार करना पड़ता 1 जनवरी 2023 की क्वालिफाइंग डेट्स का. सो अब इनका नामांकन हुआ है तो आई एम श्योर दे विल कम एंड वोट ऑल्सो, फॉर विच वी आर टेकिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स विच आई विल कनेक्ट टू यू लेटर. कमिंग टू द पोलिंग स्टेशंस, मतदाताओं के साथ एक्चुअली हमारे एंगेजमेंट के 2 सबसे महत्वपूर्ण जगहें हैं. एक जब हम उन्हें वोटर बनाते हैं और एक जब वो वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशंस पर आते हैं. How is the ambience in polling station and how much is the ease of voting? That's what is another criteria that we very seriously look at. We have instructed all the COs and DOs to visit major polling stations personally and ensure that all facilities are available there. Total polling stations की संख्या 51,782 है और हर पोलिंग स्टेशन पर एवरेज 948 पोलिंग स्टेशंस होंगे. राज्य में स्थापित मतदान स्थलों में से एटलीस्ट 50% मतदान केंद्रों पर, दैट मीन्स 25,891,
These figures are also given. तो चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। गुजरात में चुनाव आयोग अब से थोड़ी देर में तारीखों का ऐलान करेगा, पूरी अपडेट आपको देंगे। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अहमदाबाद से अंकुर त्यागी हमारे साथ हैं और अश्विन जो कि मोरबी से हमारे साथ है। सबसे पहले अंकुर, यहां चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है, वहां किस तरह का माहौल नजर आ रहा है अहमदाबाद में? इस वक्त जो स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसकी मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग को खुद अमित शाह चेयर कर रहे हैं। 182 विधानसभा सीट हैं, 4340 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी 182 सीटों पे बीजेपी के लिए पेश करी है। अभी फिलहाल जो हो रहा है 47 विधानसभा सीट हैं जिनको लेकर जो विचार मंथन है वो इस वक्त चल रहा है। मैं पीछे दिखाऊंगा आपको, ये स्टेट जो बीजेपी का जो ऑफिस है वहां पर इस वक्त मीटिंग है। खुद अमित शाह गृह मंत्री 3 दिनों तक इस मीटिंग को चेयर करने वाले हैं। 3 दिनों तक ये मीटिंग होगी, कई अलग अलग चरण इसके होंगे। आज पहला चरण जो है उसमें 47 सीट्स हैं जिनको लेकर जो विचार मंथन है वो इस वक्त यहां पर किया जा रहा है। इसमें बता दें कि पूरी व्यू रचना है, क्योंकि शुरुआत आज जैसे ही सुबह की शुरुआत होती है और पता चलता है कि चुनाव आयोग जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावों की घोषणा करने वाला है, उसी के साथ बीजेपी अनाउंस करती है अपनी स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग को लेकर। ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि इसके बाद से यहां से चुनाव किस तरह से जाएगा, कौन प्रत्याशी होगा, कौन चेहरा बनेगा, क्या स्ट्रेटेजी होगी, चुनाव प्रचार का जो ढंग होगा वो किस तरह से होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको लेकर अब ये एक क्रूशियल मीटिंग जो है वो इस वक्त चल रही है और 3 दिनों तक ये मीटिंग चलती रहेगी। कुल 182 सीट हैं, आज पहला चरण है उसमें 47 सीट्स हैं जिनको लेकर विचार मंथन चल रहा है। और उम्मीदवारों की जो प्रत्याशी हैं या उम्मीदवार हैं, जो चेहरे हैं, उनका अपना कितना जन आधार है, क्या ऑब्जर्वर्स ने वहां पे जाकर ऑब्जर्व किया है, जिला मंत्री हैं, जिला अध्यक्ष हैं, जो सांसद हैं लोकल इलाकों के, उन सब से उनकी राय प्रत्याशी को लेकर, जातिगत समीकरणों को लेकर इस वक्त ली जा रही है। जी, हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। ब्रह्म प्रकाश, अब से कुछ ही पलों में गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। लगातार विरोधी दल जो है ये सवाल खड़े कर रहे थे कि चुनाव की तारीखों का ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिली है? बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। अभी चुनाव आयोग जो गुजरात में वोटर हैं, जो मतदान केंद्र बनाए गए हैं, उन सबका ब्यौरा दे रहा है। लेकिन जहां तक देखिए राजनीति की बात है, तो जब हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था तब भी कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए थे और कहा था कि गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी क्यों नहीं एक साथ किया गया, और इसको सिर्फ इसलिए टाला जा रहा है क्योंकि केंद्र की तरफ से प्रधानमंत्री की कुछ सभाएं आयोजित की जानी है और कुछ जो है उनके जो शिलान्यास कार्यक्रम है, उद्घाटन कार्यक्रम है, इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। हालांकि देखिए, अगर पिछली बार आप 2017 में देखें तो तभी चुनाव आयोग ने अलग अलग दोनों राज्यों में के लिए अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और तारीखों का ऐलान भी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया था। लिहाजा इस बार कुछ भी नया नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सवाल जरूर उठाए हैं और आज फिर से एक ट्वीट करके तंज भी कसा है। कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग, हालांकि संवैधानिक संस्था है, लेकिन कांग्रेस सवाल उठाती रही है। अभी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, कुछ देर में तारीखें बताएगी। हालांकि ये माना जा रहा है, आपको बता दें कि दिसंबर के पहले सप्ताह में, यानी 1 और 4 दिसंबर, ये 2 दिन हो सकते हैं जो 2 चरणों में चुनाव गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखें बताई जा सकती हैं। इस बात की पूरी संभावना है क्योंकि 25 दिन के वक्त के लिहाज से देखें तो आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और 28 नवंबर के बाद चुनाव आयोग वोटिंग की तारीख रख सकता है, या 28 नवंबर हो सकती है, 1 दिसंबर या 4 दिसंबर। ठीक है, तो इस थोड़ी देर में ये साफ हो जाएगा कि तारीखें क्या होंगी। ब्रह्मा हमारे साथ अश्विन भी हैं जो कि गुजरात में अलग अलग जगहों से ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, क्या है वहां पर राजनीतिक दलों की तैयारियां, ये भी हमें बताएंगे। अश्विन, अगर बात की जाए बीजेपी की, तो हमें अंकुर ने बताया कि पार्टी पूरी तरह से तैयार नजर आती है, अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग भी चल रही है। वहीं चैलेंजर्स की अगर बात की जाए तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, उन दोनों की तैयारियां किस तरह की दिखती हैं और मोरबी का यह मुद्दा कितना अहम होगा इस चुनाव में? जिस वक्त मैं मोरबी में हूं और चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ यहां पर चुनावी बिगुल बज जाएगा और मोरबी में जो हादसा हुआ है वो चुनाव की पर कितना असर करेगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। मेरे साथ कांग्रेस के जिला प्रेसिडेंट हैं, इनसे बातचीत करेंगे और आज चुनाव की तारीखों का ऐलान के बाद इनकी क्या कुछ तैयारियां हम समझेंगे। आज चुनाव की तारीख अगले कुछ मिनटों में ऐलान हो जाएगी, क्या कुछ तैयारियां हैं आप लोग की, और मोरबी में जो हादसा हुआ है इसका कितना असर दिखाई दे सकता है चुनाव पर? मोरबी जिला कांग्रेस की ओर से आपको मैं स्वागत करता हूं और आज 3 नवंबर को जो इलेक्शन का डेट डिक्लेयर होने वाला है अभी थोड़ी देर में, तो वो बारे में हम 1 साल से पूरे मोरबी जिला कांग्रेस चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं
और पूरा हमें मोरबी में 3 सीट आती है, 64 और 65, 66 और 67, और वांकानेर, मोरबी और टंकारा। वो तीनों सीट के लिए हमेरा पूरा तैयारी है और हम 10 दिन से वेट कर रहे थे इलेक्शन के डेट के। ठीक है, और कांग्रेस मोरबी जिला का सभी कार्यकर्ताओं, कांग्रेस तैयारी कर रही है पूरी। अश्विन, आपके पास पूरा लौटेंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल जी हैं। प्रदीप जी, अगर बात की जाए गुजरात की, तो बीजेपी के लिए एक अभेद्य किला है। चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर के विपक्ष बार बार सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन अभी तक जो रुझान देखने को मिल रहा है उसमें एडवांटेज बीजेपी नजर आता है। इसकी वजह क्या देखते हैं आप? उसका सबसे बड़ा कारण, जो उसे लेकर कोई रहस्य नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, उनका गृह राज्य है गुजरात, तो उनका एक विशाल व्यक्तित्व है। देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, वो विश्व के भी जो प्रमुख नेता हैं उनमें सम्मिलित हैं। तो गुजरात के अंदर अगर लोगों में ये एक भाव रहता है उनको लेकर के गर्व का, तो वो तो स्वाभाविक है। तो भाजपा के सामने चुनौती है सरकार को न केवल नया जनादेश लेने की सरकार के लिए, बल्कि अपना प्रदर्शन जो है वो पिछले चुनाव की तुलना में उससे कहीं बेहतर करने की। तो पिछली बार भाजपा को स्पष्ट बहुमत तो मिल गया था 99 सीट के साथ 182 के सदन में, लेकिन उसके शीर्ष नेतृत्व के लिए भी वो थोड़ा सा निराशाजनक था। बिल्कुल, क्योंकि भाजपा ये मान के चलती है कि उसका प्रदर्शन बहुत शानदार होना चाहिए। तो 99 से केवल स्पष्ट बहुमत मिला था, और कांग्रेस का जो प्रदर्शन था 77 सीट के साथ, वो थोड़ा सा भाजपा के लिए भी एक हैरानी का निश्चित तौर पर वो झटका एक था, मनोवैज्ञानिक तौर पर झटका था 100 से नीचे जाना बीजेपी के लिए, और कांग्रेस का उम्मीद से कहीं बेहतर प्रदर्शन करना। अंकुर, अगर बात की जाए बीजेपी की ओर से, तो अक्सर ये देखा जाता है कि पूरी तरह से आमूलचूल बदलाव पार्टी में देखने को मिलते हैं, सरकार में देखने को मिलते हैं। मुख्यमंत्री बदल दिया गया, सीटें बदल दी जाती हैं। इस बार भी क्या पार्टी उसी तरह का फॉर्मूला अपना सकती है? देखिए, फिलहाल जो 3 दिनों की मंथन बैठक इस वक्त चल रही है अमित शाह के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से तो पहले प्रत्याशियों के बारे में बात होगी। आप बात कर रहे हैं चेहरे की, चेहरा तो अभी बीजेपी डिसाइड करना बाकी है। बीजेपी हमेशा कहती है, बीजेपी का जो ऑफिशियल स्टैंड रहा है वो ये रहता है कि हम चुनाव जो है अपने मुद्दों के ऊपर लड़ते हैं, उसके बाद जब विधायक चुनकर आते हैं, उसके बाद उनकी मीटिंग होती है, और वो मिलकर जो जीते हुए विधायक हैं वो जो कौन अगला मुख्यमंत्री होगा वो तय करते हैं। लेकिन क्या बीजेपी या जो पार्टी के आलाकमान के जो नेता है उनके पास पहले से ही कोई चेहरा है? यकीनन तौर पर एक कोई चेहरा होगा। अब उसके अंदर कई सारे आप नाम ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो मजबूती, वो इस बात पे दावेदारी होगी। अंकुर, आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त मुख्य चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। राजीव कुमार क्या कह रहे हैं, सुनाते हैं। आगे बढ़ चलकर मतदान में हिस्सा लेना चाहिए। फ्रेंड्स, सिमिलरली कमीशन इज एम्फेसाइजिंग ऑन द एम्पावरमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल आर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। there are 4.04 lakh PWD voters who shall be given priority for entering polling stations. Provisions would be made for designated parking spaces, and volunteers shall be available. And all this they can book if they want. This will be available on the booth, no doubt. But if they want to book it, they can book it on our PWD app. Any facility, any facilitation which the PWD voters want, or 80 plus voters want, they can book it at our app. We are also similarly focusing on inclusion of our TGs, the third gender voters. For variety of reasons, their inclusion, either because of various kind of social factors, has not been complete. We are focusing on it. We want them to make every one of them a voter. We have made some of them as our icons also. So any disadvantaged group in the society should deserve the highest possible recognition and respect from all of us. And Commission is very concerned and committed to provide full facilitation, full participation in an inclusive and accessible manner to all our marginalized deprived sections, which includes the 80 plus citizens, 100 plus citizens, PWDs, transgenders. We are also planning to have an outreach in certain red light areas so that our teams go and with the full
fullest possible respect and secrecy, and whatever is the social milieu, they get the boats made and they also get the awareness activities for the boating. Friends, 2017 की कंपैरिजन में there is a 100% increase in the number of transgenders in the state of Gujarat. There are 1417 TGs who are now registered, and it's actually a sight to be seen to believe when they come forward. They came forward when we went to Gujarat last time, and the kind of enthusiasm they had in participating and even becoming our icons to convey to the others that you come and vote for us. So we very happily recognize their commitment, and there are now 1417 voters. Just to inform you, there are now 44,904 registered third gender voters in the entire country, and even counting. In this SSR, we'd again do a great, whole lot of effort to make them our voters. Friends, next is about the participation of the citizens. ये पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं कि सी विजिल के माध्यम से अगर नागरिक अपनी कोई भी शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो उनके फ़ोन से ही उनका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड रजिस्टर्ड हो जाएगा, सारी शिकायत वहीं आ जाएगी। अगर नहीं करना चाहते हैं तो अगर लिख नहीं सकते तो एक कागज़ पर लिख के फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं, और जो भी शिकायत वो करेंगे उसकी 60 मिनट्स में एक टीम कॉन्स्टिट्यूट होके जाएगी और विद इन 100 मिनट्स उनको उसका रेस्पॉन्स मिलेगा कि आपकी शिकायत सही पाई गई, आंशिक रूप से सही पाई गई या नहीं पाई गई, और उस पर ये एक्शन हुआ। तो अगर किसी भी चुनाव की प्रक्रिया के दौरान कोई भी सिटीजन कोई मनी पावर, कोई मसल पावर, कोई किसी भी तरीके का दुरुपयोग देखते हैं या किसी पोलिंग पार्टी का दुरुपयोग देखते हैं के द्वारा, तो निश्चित रूप से सी विजिल का यूज करें और उस पर कमीशन को खबर करें। सिमिलरली there is a Suvidha portal, there is a PWD app portal. Suvidha portal is for the candidates to get any facility they want to get from the election commission and from the staff. इसमें यह भी सुविधा है कि अगर जैसे उनको उदाहरण स्वरूप ग्राउंड बुक करनी है तो इसमें सुविधा है कि ऐसा नहीं है कि ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स की मर्जी पर है, जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले मिलेगी, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दिस इज व्हाट द डिजिटल लॉक इन ऑन द सुविधा ऐप प्रोवाइड्स, एंड वी हैव गिवन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू एवरीबडी कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। जो पहले अप्लाई करे उपलब्धता के आधार पर पहले ग्राउंड, पहले फैसिलिटीज उन्हीं को मिलनी चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन दी पॉलिटिकल पार्टीज। Similarly, the next important disclosure is about the KYC app. किसी भी नागरिक को, किसी भी वोटर को अपने कैंडिडेट के बारे में कुछ भी जानना है तो जो एफिडेविट नॉमिनेशन के दिन फाइल करेंगे उसकी पूरी की पूरी कॉपी, जिसमें उनकी क्रिमिनल डिटेल्स अगर कोई हैं तो उनके अकाउंट्स की डिटेल, इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, जिसको हमारी वेबसाइट पर भी है, और वो स्पेसिफिकली KYC, नो योर कस्टमर, नो योर कैंडिडेट। उस नो योर कैंडिडेट में आप उसकी एजुकेशनल कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन क्या है, उनका आर्थिक और क्रिमिनल बैकग्राउंड अगर कोई है तो वो क्या है, सब इस पे उपलब्ध होगा। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ डिस्क्लोजर सो दैट वोटर्स कैन टेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। और अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो कैंडिडेट्स को उसको मैंडेटरीली पब्लिश करनी पड़ेगी एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय अखबार में, और सोशल मीडिया पर उनको 3 बार उसकी डिटेल्स पब्लिश करनी पड़ेंगी। और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज को ये भी बताना होगा और उसको पब्लिश भी करना होगा कि वो उन्हें क्रिमिनल के अतिरिक्त कोई दूसरा कैंडिडेट क्यों नहीं मिला। दे शुड गिव रीजंस, मेक इट पब्लिक सो दैट वोटर्स नो कि उस क्षेत्र में क्रिमिनल बैकग्राउंड के अलावा कोई भी और कैंडिडेट ढूंढने में पार्टीज को क्यों और किस प्रकार से इतनी कठिनाई हुई, ये जरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा उनको रीजन से, सो दैट वोटर्स जाने कम से कम कि सिर्फ क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग ही पार्टी को मिल सके। फॉर great emphasis which we want to give, and just to explain to you on the
inducement-free voting and expenditure management. There is a zero tolerance which has been conveyed and will be conveyed further, that government machinery has to be absolutely impartial, fair, and provide the level playing field. It's a zero tolerance. This is being conveyed and has been conveyed to all the officials who are involved, be it civil officials, police officers, enforcement agencies. If there is any instance which is found that there is a violation of this by any officials, we'll deal with this very, very sternly. Similarly, expenditure-sensitive constituencies, there are strict instructions to police, excise department, GST departments, coast guards, income tax, EDs, railway protection force, CISF at the railway station. And let me give you the figures, though they are still increasing and counting. In Himachal elections in 2017, total seizure was 9 crores. It has already crossed 28 crores now, including liquor, mining, and drugs and various kind of things. And still there are 10-12 days to go. We are sure this figure will increase, nothing would move. All the borders and everywhere there is a strict vigilance, and Commission is going to meet all the Chief Secretaries and DGs of the neighboring states of Himachal and Gujarat also, so that the borders are absolutely safe. Nothing moves from the part of those borders in terms of where, if the liquor is cheaper in another place, if there is a provision in one particular place and it comes from the neighboring states, absolutely no leniency on that, and officials have been very, very strictly told about this. Similarly, the narcotics control, and in case of Gujarat, there is a long border of the coast, so coast guards have also been directed and advised that they will keep a very strong vigil on any movement of drugs which is happening, unfortunately, spoiling our youth of the country. It's happening in quite a increased fashion because of the various international factors. However, during the elections, the machinery would be extremely conscious that it does not happen. I would briefly cover about the directions given to the district officials and COs about the social media and the fake news. The narratives which get developed, you are all very well aware. At times, उसमें फेक न्यूज़ भी हैं, उसमें झूठे एक नैरेटिव्स भी हैं. सो डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ने सबको सोशल मीडिया टीम अपने यहाँ सेटअप करने के लिए. तो इस बार मुकाबला गुजरात में बीजेपी चाहेगी कि अपने गढ़ को और मजबूत किया जाए, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल जी हैं. प्रदीप जी, अगर बात की जाए गुजरात की, तो कांग्रेस वहां लगातार 39-40% वोट जरूर लेती रही है, लेकिन कभी भी पिछले 25-27 साल से बीजेपी को हरा पाने में कामयाब नहीं रही है. इस बार हम देखते हैं कि आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत झोंक रही है. कितना दमदार देखते हैं इन पार्टियों की चुनौती को? कांग्रेस के लिए एक बड़ी दिक्कत है, जहां जहां भाजपा से सीधा उसका सामना है तो पार्टी ठीक ठाक थोड़ा बहुत कुछ कर लिया, कुछ नहीं कर लिया, उस प्रकार से प्रयास करती है. और चूंकि भाजपा के विरुद्ध जिस किसी को वोट देना होता है वो कांग्रेस को वोट देता है. लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जाकर के जो ललकार भरी है प्रदेश में, उससे कांग्रेस के लिए ये दिक्कत आ गई है कि उसे जो ऊर्जा है आम आदमी पार्टी की, जो उसके अंदर उत्साह है, जो उसकी इच्छा शक्ति है चुनाव में कुछ प्रभावी अपना प्रदर्शन करने की, उसके चलते हुए कांग्रेस को भी उसका मुकाबला करना है. तो चुनौती दोहरी है. एक चुनौती है भाजपा को परास्त करने की, जो उसका लक्ष्य हो सकता है या किसी भी चुनाव में होना चाहिए. ठीक है, दूसरी चुनौती है, रोकना चाहेंगे, इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम घोषणा हो रही है, सीधे सुनाते हैं. डेट ऑफ फॉर स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशंस would be November 15th and 18th respectively. Withdrawal would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. And the entire process would be completed on 10th of December. So this is what is the schedule. And lastly, as we always say, media is the biggest ally of the Election Commission.
तो आपके माध्यम से मैं सभी वोटर्स से ये अपील करना चाहता हूं कि वो इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, निष्पक्ष तरीके से लें। अगर कहीं कोई उनकी समझ से इरेगुलर एक्टिविटी या पार्शियल एक्टिविटी है तो उसको सी विजिल के माध्यम से जरूर हमें खबर करें एंड वी विल इंश्योर दैट दे गेट द आंसर्स इन 100 मिनट्स। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट, हम क्वेश्चंस लेंगे। आप प्लीज पूछने के पहले अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम बोलें। मैं फर्स्ट रो से लेती हूँ क्वेश्चंस। पहले आपने गुजरात में चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 और 5 दिसंबर को गुजरात में वोटिंग होगी। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, गुजरात में चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को मतदान कराया जाएगा। नतीजे 8 तारीख को ही हिमाचल प्रदेश के साथ आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, 1 और 5 दिसंबर को गुजरात चुनाव में वोट डाले जाएंगे। 2 चरणों में होगा मतदान। आप अपना सर, मोहित दुबे, न्यूज नेशन से हूं सर। लगातार और 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। बड़ी खबर, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। इस वक्त की बड़ी खबर जी न्यूज पर आपको बता दें, गुजरात विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को कराया जाएगा। 182 सदस्यों की विधानसभा है और 2 चरणों में मतदान होगा। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को नतीजे आएंगे। 8 दिसंबर को इसी दिन हिमाचल प्रदेश के चुनाव के नतीजे भी आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। 2 चरण में मतदान कराए जाएंगे। पहला चरण होगा 1 दिसंबर को, दूसरा चरण होगा 5 दिसंबर को। गुजरात जहां बीजेपी का मजबूत किला बना हुआ है, 2 दशक से ज्यादा हो चुके हैं और विपक्षी पार्टियां बीजेपी को घेरने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। बीजेपी अपने किले को और मजबूत करने की कवायद करेगी और चुनावी जंग लड़ी जाएगी 1 और 5 दिसंबर को। 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान होगा, 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, गुजरात में चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। गुजरात में 2 चरण में चुनाव होगा। 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान, दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा। 2022 में गुजरात की लड़ाई 2 चरणों में लड़ी जाएगी, 1 दिसंबर और 5 दिसंबर। नतीजे आएंगे 8 दिसंबर को। इन तारीखों को नोट करके रख लीजिए, 1, 5 और 8। 1 तारीख और 5 तारीख दिसंबर, इस दिन वोटिंग होगी गुजरात में 2 चरणों में और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। बीजेपी एक बार फिर से गुजरात में अपना जीत का परचम लहराना चाहेगी, जबकि कांग्रेस बीजेपी को हटाकर गुजरात में सत्ता पर काबिज होना चाहती है। आम आदमी पार्टी भी चुनौती दे रही है और सियासी समर के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। पहला चरण 1 दिसंबर, दूसरा चरण 5 दिसंबर। गुजरात चुनाव के लिए वोटिंग के दिन तय कर दिए गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ मिनटों पहले। 1 दिसंबर को पहले चरण का मतदान, दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को और मतगणना होगी 8 दिसंबर को। अचार सिर्फ खाने के लिए ही नहीं है, कमाने के लिए भी है। ये अचार के बिजनेस करके महीने के 5 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।